Hi everyone, welcome to MB Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Best of Cat LRD practice series, right? So let's begin. We have a very important announcement, a new announcement, right? So we are beginning with a complete preparation batch for SNAP and NMAT, right? So if you're an aspirant looking for these two exams, right? So this is a batch for you. All the links are there in the description. All the description of the batch are available on our website too. You can call us on our numbers to get more information. Right, so let's get going with the set for today. Now, this is almost a little RC in itself, right? But this is a very interesting set. So I would classify this under distributions, right? And this is a moderate to difficult, I would say. Let's start reading this first. Let's understand what is given in this. There are a lot of information given, right? A paragraph to begin with, and then there are followed by 9 different points, right? So a lot to read, but yes, we have to keep on processing all the information we have. Let's start solving this. And as always, before actually proceeding with the rest of the solution, pause this video right here itself, try this problem yourself, and then proceed on with the rest of the solution. राइट चलो फिर लेट स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सेट देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है सो अ जर्नल plans to publish 18 research papers written by 8 different authors A, B, C, D, E, F, G, H. Right. So we'll keep on writing all the variables that are given. Right. So there are 8 different authors and they have written a total of 18 research papers. So the 8 different authors are what? A, B, C, D, E, F, G, and H. Right? So these are the authors, and they have written a total of 18. Now, we don't know how many each one has written, right? In 4 issues of the journal scheduled in January, April, July, and October. So that is the second parameter कि ये जो हमारे 18 रिसर्च पेपर है ये 4 issues में लिखे गए issues are magazine के issues वगैरह journal के issues. So one issue was in January, right? Jan. Then one was in April. Then the third one was in July, and the final one took place in October. राइट सो ये 4 मंथ में ये 18 आपके इश्यूज रिलीज हुए. ये भी नहीं पता कि किस में कितना आपका रिलीज हुआ है अभी फिलहाल. ईच ऑफ द रिसर्च पेपर्स वाज रिटन बाय एग्जैक्टली वन ऑफ द 8 ऑथर्स. तो हर रिसर्च पेपर ये जो 18 है वो एग्जैक्टली एक पर्सन नहीं लिखा है, राइट? ओवरलैप नहीं है. क्लियर. 5 पेपर्स वर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 इश्यूज. नाउ उसने क्लियर कट अभी इंफॉर्मेशन दे दी उस बारे में. 5 पेपर्स वर रिटन इन द each of the first 2 issues. So January में भी 5 issues, April में भी 5, and then what? While 4 was scheduled in each of the last 2 issues. तो बाकी के remaining months में आपका जुलाई and अक्टूबर में कितना कितना है? 4 each. Right, at least we have the numbers in place. Next, every author wrote at least one paper and at most 3 papers. अभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है रिसर्च पेपर्स को ब्रेक डाउन करने का. सो टोटल 18 रिसर्च पेपर्स है. उसने कंडीशन क्या सेट करी है? सारे जो भी ऑथर थे इन्होंने एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर लिखा है. सो एवरी नंबर हैज टू बी एन एटलीस्ट ऑफ वन एंड एट मोस्ट 3 पेपर्स. तो मैक्सिमम आपका 3 हो सकता है. सो 1 2 3 यही सारी वैल्यूज आपकी पॉसिबल है इन 8 ऑथर्स में. Then the total number of papers written by A, D, G, H. Now, A, D, G, H. The total number of papers written by them is double the total number of papers written by the other 4 authors. Now, this makes our life way easier because हम यहाँ पे कुछ numbers at least break कर सकते हैं. Because A, D, G, H, let's assume वो हमारे चारों values for example क्या है बाकी के बी सी ई एच बी सी ई जी का डबल बी सी ई एफ का डबल है. सो अगर बी सी ई एफ इज लेट्स से एक्स तो बाकी जो ए डी जी एच थे दे विल बी 2x. सो 2x प्लस एक्स शुड टर्न आउट टू बी अ 18. तो इससे हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6. तो अब समझो सिंपल पॉइंट ये क्यों था. बिकॉज ए डी जी एच का टोटल सम कितना बन जाएगा? वो डबल वाला था तो वो हमारा कितना बन जाएगा? 2x, दैट इज 12. नाउ द मैक्स they can take is 3. सो 12 बनाने के लिए एक्चुअली में मुझे चारों पे ही 3 रखना पड़ेगा. सो वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड फ्रॉम हियर कि ए ने 3 सच पेपर लिखे, डी ने भी 3 लिखा, जी ने भी 3 लिखा और एच ने भी 3 लिखा है. नाउ द रिमेनिंग 6 4 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा बी सी ई एफ में. अब 4 नंबर में तुम्हें अगर 6 बनाना है तो आपके पास एक्चुअली में दो पॉसिबिलिटी है. यू कैन हैव अ 1 1. पहले तो सबको 1 1 1 1 दे दो, 4 बन जाएगा. तो 2 बचा. अब वो 2 तुम डायरेक्टली किसी एक 1 में बढ़ा दो तो 1 1 1 3 पॉसिबल है.
या फिर तुम दो वन में वन वन बढ़ा दो तो वन वन टू टू. सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज टू मेक दैट रिमेनिंग सिक्स. सो बी सी ई एफ में आई डोंट नो फॉर नाउ कि कौन सा आपका केस बनने वाला है, तो अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं. लेट्स कीप ऑन रीडिंग फर्दर. Next, four of the authors were from India. Now, there are more variables involved, right? So that is the difficulty in this set. So four were from India. Okay. So we'll cascade this, right? So we'll try to cascade this. So India, four of the authors were from India, uh, and two each were from Japan and China. So there are three countries involved: Japan, China, and India. And क्या बोला? Four were from India, right? Four हमारे इंडिया से थे, and remaining Japan and China से कितने कितने थे? Two each. Clear? Then each author belonged to exactly one of the three areas: manufacturing, automation, and logistics. So तीन different आपके areas हैं, right? Manufacturing, automation, and logistics. So manufacturing, automation, एंड लॉजिस्टिक्स, ये डिफरेंट एरिया से यही आपके जो टोटल 8 लोग हैं, ये 8 ऑथर्स हैं, यही बिलोंग करते हैं. अब क्या हमें इसका भी नंबर दिया हुआ है? अगर दे दे तो अच्छा है. फोर ऑफ द ऑथर्स वर फ्रॉम लॉजिस्टिक्स, सो उसने देना चालू कर दिया है. सो गुड पीपल. सो वो फोर वर फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया, टू वर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया. तो टोटल हमारे 8 लोग थे, तो फोर प्लस टू सिक्स, तो रिमेनिंग वुड बी टू. तो दो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में है, दो हमारे ऑटो में है, और दो हमारे लॉजिस्टिक्स में. क्लियर? सो ये हमारे पास सिचुएशन बन चुकी है. नेक्स्ट, as per the journal policy, none of the authors could have more than one paper in any issue of the journal. Now this is important, this is a very important part. कि जैसे फॉर एग्जांपल ए का तीन आपका पब्लिकेशन है, तीन उसने रिसर्च पेपर लिखे, तो उसने बोला नन ऑफ द ऑथर्स कुड हैव मोर देन वन पेपर इन एनी इशू ऑफ द जर्नल. तो ये तीन हमेशा वन 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 करके ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. जैसे जनवरी में वो दो नहीं लिख सकता, राइट? ए का इन 4 मंथ्स में से 3 मंथ में वन 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 आएगा. सो दैट मेक्स आवर लाइफ इजी. जैसे मान लो कभी भी अगर तुम्हें ऐसा स्टेटमेंट मिला कि ए मान लो जनवरी में नहीं लिखता, सो डेफिनेटली फिर आपका अप्रैल में ही आएगा, जुलाई में भी आएगा, और अक्टूबर में भी आपका ए आ जाएगा. राइट? सो दैट इज द इनिशियल पैराग्राफ. काफी इंफॉर्मेटिव वो था. नाउ वी स्टिल हैव अ लॉट मेनी स्टेटमेंट्स टू रीड. लेट्स स्टार्ट प्लगिंग ऑन ऑल द स्टेटमेंट्स. चलो स्टार्ट करते हैं. एफ एन इंडियन ऑथर. सो उसने बता दिया एफ इज एन इंडियन ऑथर, लिख लो एफ. एफ एन इंडियन ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया. सो एफ हमारा लॉजिस्टिक्स को बिलोंग करता है. रोट ओनली वन पेपर, इट वॉज शेड्यूल्ड इन द अक्टूबर इशू. तो एफ का उसने नंबर ब्रेक कर दिया, ध्यान से देखना, ठीक है? एफ का उसने नंबर वन ब्रेक कर दिया है, एंड दैट वॉज शेड्यूल्ड इन द अक्टूबर इशू. तो इसमें तुम्हारा एफ आएगा. बस एक ही बार आपका एफ आना है. सो ये वन कहाँ आएगा? एक बार अक्टूबर में आएगा, तो ये हमने टिक कर देते हैं इसको, मतलब याद रहेगा अपने को, वो हम यूज कर चुके हैं. सो दैट फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटली डन. A was from automation area, so A was from automation area, A यहाँ पे लिख दिया, and did not have a paper scheduled in the October issue. राइट? सो डिड नॉट हैव अ पेपर स्केड्यूल्ड इन द अक्टूबर इशू. तो यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन करा था. ए का अक्टूबर में अगर नहीं है, और ए के टोटल हमारे 3 पब्लिकेशंस है, तो ऑटोमेटिकली तीनों ए तुम्हारा जनवरी, अप्रैल और जुलाई में आ जाएगा. राइट? आई होप दैट इज परफेक्टली क्लियर. तो इसको भी मैं टिक कर देता हूँ. ये हमारे तीन ए हमने प्लेस कर दिए, क्योंकि कभी भी सेम पब्लिकेशन में, कभी भी सेम इशू में रिसर्च पेपर्स रिपीट नहीं हो सकते, राइट? सो ए के तीनों अलग अलग इश्यूज में आएंगे. अक्टूबर में नहीं है तो जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई में आपका आएगा. सो ए वॉज फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया. सो दिस इज नाउ कंप्लीटली डन. नेक्स्ट, नन ऑफ द इंडियन ऑथर्स वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया. तो कभी भी इंडियन तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा, तो एफ डेफिनेटली यहाँ. तो चलो एफ तो वैसे भी प्लेस कर चुके हैं. हमारा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में कभी भी नहीं आएगा, एक तो ये पॉइंट है. एंड नन ऑफ द जापानीज और चाइनीज ऑथर वर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया. नाउ दिस इज वेरी प्रिसाइज. जापानीज और चाइनीज कभी भी ऑटोमेशन में नहीं आएगा. तो जापानीज और चाइनीज अगर ऑटोमेशन में नहीं आएगा, तो हम ये डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडियन बंदा ही सिर्फ ऑटोमेशन में आ सकता है. नाउ लेट्स बी वेरी क्लियर, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल इंडियन पर्सन विल बिलोंग टू ऑटोमेशन. वो तो तुम्हें वैसे भी दिख रहा है कि वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 4 इंडियन लोग हैं, दो आपके ऑटोमेशन में. वो ये कह रहा है कि जापानीज और चाइनीज ऑटोमेशन में नहीं आ सकता, तो अगर कोई आएगा तो इंडियन आएगा. राइट? तो इसका मतलब, इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन ये है
जस्ट बिकॉज मैंने बोला है कि ऑटोमेशन में ए आया है, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ ना कि ए हमारा जापानीज या चाइनीज नहीं हो सकता। सो ए किस कंट्री का पार्ट होगा? आपका इंडिया का पार्ट होगा। राइट, आई होप दैट इज परफेक्टली क्लियर। ए वुड बिलोंग टू इंडिया, तो ये पार्ट अपना हो गया। ठीक है, इस पार्ट आई एम गेसिंग दिस वुड बिकम लाइक रेलिवेंट अ लिटिल लेटर ऑल्सो, बिकॉज बाकी लोगों के लिए भी कंडीशन होगी, देयर आर मेनी जापानीज एंड चाइनीज ऑथर्स अवेलेबल, सो उनके लिए भी कंडीशन वैलिड होने वाली है। देखते हैं अभी। देन A and H were from different countries. A and H were from different countries. So definitely हमारा H इंडिया का पार्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। But had their papers scheduled in exactly the same issues. Now this is important. A and H exactly same issues है, तो H का भी नोटिस करो 3 था, तो H तीनों आपके A के साथ ही उसी सेम इश्यूज में आएंगे, तो यहाँ पे भी H आएगा, यहाँ पे भी H आएगा, और यहाँ पे भी तुम्हारा H आएगा। A and H were from different countries, तो मैं यहाँ पे ऐसे H लिख के क्रॉस भी डाल दूँ, यहाँ पे H डेफिनेटली बिलोंग नहीं करेगा। सो दैट इज द फोर्थ पॉइंट। देन सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर्स, सो ये इसने क्लियर कट बोल दिया, बोथ सी एंड ई, तो ये दो चाइनीज ऑथर आपको मिल चुके हैं। सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर्स वर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अब इसको समझो, सी एंड ई चाइनीज ऑथर है, हमें ये पता है कि चाइनीज ऑथर कभी भी ऑटोमेशन में नहीं आ सकते, तो चाइनीज ऑथर सी और ई दोनों डिफरेंट एरियाज में कहाँ आएंगे? एक मैन्युफैक्चरिंग में आएगा और एक तुम्हारा लॉजिस्टिक्स में आएगा। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी स्लैश ई और यहाँ पे ई स्लैश सी। तो अगर सी यहाँ पे आया तो यहाँ पे ई आएगा, अगर यहाँ पे सी आया तो यहाँ पे उल्टा ई आएगा। क्लियर? नाउ अभी और है, सी एन ई बोथ चाइनीज ऑथर रॉट फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, ठीक है, हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर शेड्यूल्ड। अब समझो, सी एंड ई ये हमारे पास नंबर बचे हुए थे, ठीक है, इन दोनों में से पॉसिबिलिटी थी, याद रखना, उसमें से एफ का आपका वन आ चुका है, सी एंड ई का दोनों का सेम है। अब दोनों का सेम, अभी फिलहाल तो आपको लगेगा कि वन वन भी रख सकते हैं बिकॉज ट्रिपल वन इज अलाउड इन दिस, टू टू भी रख सकते हैं बिकॉज वन आया तो वन वन टू टू वाला केस भी बन सकता है। बट वेन वी रीड फर्दर, had the same number of papers scheduled, further E had papers scheduled in consecutive issues of the journal। तो E का उसने बोल दिया ना कि कंसेक्यूटिव इश्यूज है, तीन तो हो नहीं सकता, राइट। ई हैड कंसेक्यूटिव इश्यूज, सही, तो ई के हमारे दो होंगे ना, बट सी डिड नॉट। मतलब ई और सी का देखो, समझो, ई और सी का दोनों उसने बोला सेम नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स है, और ई का कंसेक्यूटिव है ना। कंसेक्यूटिव होने के लिए कम से कम आपका दो होना पड़ेगा। तीन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज तुम्हारा सी एन ई का दोनों का तीन तीन कैसे हो सकता है? एक ही बार तीन आ सकता था, इसलिए वो वाला पॉसिबिलिटी तो गया, थ्री थ्री। वन वन इसलिए नहीं होगा फिर क्योंकि कंसेक्यूटिव का पॉइंट नहीं रहा, क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो एटलीस्ट टू होगा। सो हम डेफिनेटली यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि सी एंड ई का दोनों का टू टू होगा, बिकॉज दोनों में टू टू आया है, तो फिर ये वाला केस आपका बन रहा है। दैट ऑल्सो मीन्स कि बी का एक रिसर्च पेपर होगा। राइट, आई होप दैट इज परफेक्टली क्लियर। अब इसमें एक और चीज, फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल्ड इन कंसेक्यूटिव इश्यूज ऑफ द जनरल बट सी डिड नॉट। अब इसको क्या हम क्रैक कर सकते हैं? इसने बोला ई के जो रिसर्च पेपर है वो कंसेक्यूटिव इश्यूज में आएंगे बट सी के नहीं आने चाहिए। नाउ दिस इज लाइक बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। अभी मान लो ई के तुमने कंसेक्यूटिव जनवरी अप्रैल में डाले, तो बाकी का या अभी हम फिलहाल नहीं बोल सकते, राइट। अभी मान लो अगर हम ई ई रखते हैं तो सी हो सकता है यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, बिकॉज अभी काफी स्पेस अपनी बची है। सो सॉरी, लेट्स कीप दिस ऑन होल्ड राइट नाउ। अभी हम नहीं बोल सकते, ठीक है, बिकॉज वी कैन हैव केसेस लाइक यहाँ पे ई रखा, यहाँ पे ई रखा, यहाँ सी रखा, और अगला सी हमने यहाँ नहीं रखा, बस यहाँ रख दिया, बिकॉज अभी नंबर्स बड़े हैं, तो अभी आपके पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर? चलो, तो फिर इसको हम थोड़ा अभी देर में लेके आएंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बी फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया, सो बी हमारा लॉजिस्टिक्स में है, दैट इज कंफर्म। हैड अ पेपर शेड्यूल्ड इन अप्रैल इशू ऑफ द जर्नल, तो बी का कितना था? वन था ना, तो वन अब हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। कहाँ पे था उसका? अप्रैल में था, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? बी, इसको भी टिक कर देते हैं। अच्छा बाय द वे, एच भी हमारा पूरा हो चुका है, तो एच को भी हम क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं, राइट। तो ए, एच, बी और एफ का हमारा पूरा इसमें ब्रेक डाउन हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी कहानी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये पॉइंट पूरा हो गया। बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, B and G belong to the same country. Now, where could B and G be? B and G नोटिस करोगे तो तुम्हारा अभी इंडिया में भी आ सकता है, क्योंकि दो लोग की स्पेस बची है, और जापानीज भी हो सकते हैं, अभी दो लोग की स्पेस बची है, तो फिलहाल हम इसको यूज नहीं कर सकते। नन ऑफ द पेपर वर शेड्यूल्ड इन द सेम इशू ऑफ द जनरल, सो लेट्स कीप दिस ऑन होल्ड। अभी बीजी को हम प्लेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। डी अ जापानीज ऑथर, नाउ दिस बिकम्स रेलिवेंट, राइट, और पीछे वाला इसी के साथ टूट जाएगा। देखो,
डी है जापानीज ऑथर, तो डी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया, सो डी हमारा यहाँ पे भी आ गया। विद दिस टू गेट सेटिस्फाइड। डिड नॉट हैव अ पेपर स्केड्यूल्ड इन द जुलाई इशू, नोटिस करो डी हमारा जुलाई में नहीं आएगा। और डी के टोटल कितने पेपर है, 3 पेपर है, तो जुलाई में अगर डी नहीं है तो बाकी सारे मंथ्स में तुम्हारा एक एक बार डी का पेपर आएगा। तो काफी इंफॉर्मेटिव था ये हमारा डी वाला पॉइंट। तो डी इज नाउ ऑल्सो डन। एंड नाउ लेट्स जम्प बैक टू द प्रीवियस स्टेटमेंट। बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री बोला था। अब हमारा वो जापानीज नहीं हो सकता, स्पेस ही नहीं है हमारे पास क्योंकि डी आ गया। सो बी एंड जी वुड बिलोंग टू इंडिया, right? Now B and G belong to the same country, none of the papers were scheduled in the same issue of the journal। अब नोटिस करो, G का 3 था, B आप सेटिस्फाई कर चुके थे इसके हिसाब से, G के 3 थे और B G कभी भी सेम जर्नल में नहीं आएंगे, तो बहुत सिंपल हो गया। G के ये जो 3 है वो B को छोड़ के आएंगे, दैट इज G यहाँ पे आएगा, G यहाँ पे आएगा और G तुम्हारा यहाँ पे आएगा। तो दैट सेटिस्फाइज आर बी जी। ऑल्सो जापानीज में नोटिस करो, अब आपके पास एक ही नाम बचा है, उसको तुरंत से लिख सकते हो आप, बिकॉज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आपका यहाँ पे भी बचा हुआ है। सो एच तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। सो नेम्स ऑफ ऑल द लाइक कंट्री वाले पेपर्स, जो उनकी नेशनैलिटी है वो वाला पार्ट तो पूरा डन हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट हम यूज कर चुके थे। सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज, सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज। अच्छा, ये हमारा पूरा सेटिस्फाई हो चुका है। एक इसमें आना बाकी है और एक तुम्हारा इसमें आना बाकी है, ठीक है, एक तुम्हारा इसमें आना बाकी है और एक तुम्हारा इसमें आना बाकी है, ठीक है। और हमारे पास क्या अभी हमने पॉइंट छोड़ा है, अब हम वो वाला पॉइंट एक बार देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे अब काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, बिकॉज अब 5 है तो यहाँ पे एक आना बाकी है, यहाँ एक आना बाकी है, यहाँ एक आना बाकी है और यहाँ पे एक आना बाकी है। अब आपका इजी है। देखो उसने बोला था ना, ई हैड पेपर्स शेड्यूल्ड इन कंसेक्यूटिव इश्यूज ऑफ द जर्नल, राइट? ही हैड पेपर्स शेड्यूल्ड इन द कंसेक्यूटिव। अगर मान लो तुमने ये दो जगह ई लिखा, तो अब इन दोनों में सी नहीं आ सकता था, पहले वो प्रॉब्लम थी। अगर तुमने इन दोनों में कंसेक्यूटिव ई को बनाया तो ये दोनों सी कंसेक्यूटिव हो जाएगा, बट सी को कंसेक्यूटिव नहीं होना है। अगर तुमने ये दोनों ई जुलाई और अक्टूबर को तुमने ई पे रखा कंसेक्यूटिव, तो इन दोनों में सी आ जाएगा, एक एक सी, क्योंकि दो सी आना है, दोनों प्रॉब्लम है। तो ई को प्लेस करने का सच दैट इट इज कंसेक्यूटिव एंड सी का इट इज नॉट कंसेक्यूटिव, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, ई यहाँ रख दिया, ई यहाँ रख दिया और हमने सी यहाँ रख दिया और हमने सी यहाँ पे रख दिया। विद दिस ये सेटिस्फाई हो गया और तुम्हारा ये भी सेटिस्फाई हो गया। क्लियर? सो अब ये पार्ट हमारा पूरा बन चुका है, ये वाला पार्ट भी हमारा बन चुका है। अब बस हमारा ये लास्ट पार्ट बचता है एक्चुअली ना, इसमें हमारा ये दो सी डी, चलो दो नाम इनमें से कुछ आएंगे, इसमें हमारा एक नाम आना बाकी है। और हमने क्या लाइक नोटिस करा था कि इसमें कभी भी जापानीज और चाइनीज नहीं आ सकता। तो हमारे पास इसमें से कौन सा नाम है जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए दिख रहे हैं? तो नोटिस करो, आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी और एच तुम्हारे पास बचा हुआ है, राइट? जी और एच है। नोटिस करो इसमें एच नहीं आ सकता बिकॉज इज अ जापानीज, तो यहाँ एच नहीं आएगा। सो एच डेफिनेटली यहाँ आएगा। तो तुम्हारे पास क्या बचा है, जी। जी ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा और आ सकता है बिकॉज इज अ इंडियन। एंड फाइनली सी एन एच बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज, ये कंडीशन सिर्फ इस चीज के लिए है, सी एन एच अगर डिफरेंट एरियाज है तो ये सी आ नहीं हो सकता एच के साथ। तो यहाँ सी हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई। और बिकॉज यहाँ ई आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सी। And that is the final arrangement. A beautifully constructed set, I would say. Right? Beautiful distribution problem. Right now, let's do the problems. Now, इन problems को solve करने में भी आपको again हो सकता है calculation करनी पड़े. तो let's be very sure about this. So, what is the correct sequence of number of papers written by B, C, E, G? B, C, E, and G. Right? 1, 2, 2, and 3. 1, double 2, 3. कौन सा option? C option. हाउ मेनी पेपर्स वर रिटन बाय इंडियन ऑथर्स? इंडियन ऑथर्स ने पेपर कितने लिखे? तो इंडियन ऑथर्स ने टोटल कितने पेपर लिखे वो आपको चेक करना पड़ेगा। सो इंडियन ऑथर्स, एफ ने कितने पेपर लिखे? 1। ए ने कितने पेपर लिखे? 3। बी ने कितने पेपर लिखे? 1। जी ने कितने पेपर लिखे? 3। 4 प्लस 4 दैट इज 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू? नाउ आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। लेट्स रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। Every issue had at least one paper by authors from each country. So हर इशू में तीनों कंट्रीज का एटलीस्ट एक एक पर्सन आ जाने चाहिए, ठीक है। नाउ चेक करते हैं, ए एच डी जी सी, ए यहाँ का है, एच यहाँ का है और सी यहाँ का है। सो सेटिस्फाई हो रहा है, राइट? जनवरी में
तीनों कंट्रीज का एटलीस्ट एक एक पर्सन आ रहा है। हर इशू में होना चाहिए चीज ना, सब में चेक करना पड़ेगा। अप्रैल में AHBDE, AHBDE ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर गए। AHGE, AHGE ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। FDGC, FDGC ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। Second point, B statement, every issue had at most two papers by authors from each area. Now, एरिया वाइज हमारा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन एंड लॉजिस्टिक्स। सो ये सब कुछ मिला के मैक्सिमम आपके दो लोग होने चाहिए, राइट? मैक्सिमम आपके दो होने चाहिए हर एक इशू में। तो जैसे जनवरी में अगर चेक करो, AHDGC आया, राइट? AHDGC, AHDG एंड C। ना इसमें आपको ध्यान से ये चेक करना है ना, देखो जनवरी में क्या हुआ, AHDGC था। सो AHDG एंड C, तो उसने ही बोला था ना, मतलब तीनों एरिया से मैक्सिमम टू आ सकते हैं फ्रॉम ईच, राइट? ये था ना, एवरी इशू हैड एटमोस्ट टू पेपर्स फ्रॉम ऑथर्स फ्रॉम ईच एरिया। हर एरिया से आपका आना चाहिए और एटमोस्ट टू आ सकता है, राइट? तो यहाँ से CD आए, दो लोग आए, यहाँ से दो लोग आए और यहाँ से एक लोग आए, दैट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। जनवरी में तो सब लोग सेटिस्फाई हो रहा है। अप्रैल में AHBDE है, तो AHBDE ये गलत हो जाएगा आपका, बिकॉज हर एरिया से आया तो, बट लॉजिस्टिक से कितने लोग आ गए? तीन लोग आ गए, बट उसमें बोला था हर एरिया से एटमोस्ट टू फ्रॉम ईच आ सकता है, राइट? मैक्सिमम आपके एक जगह से टू आ सकते थे, तो यहाँ से तीन लोग आ गए, इसलिए अप्रैल में सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। हेंस दिस B statement is wrong, right? So only statement A is correct. Fourth, which of the following is the correct sequence of number of papers by authors from automation, manufacturing and logistics area respectively? Again count करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग में कौन है आपका? CD का टोटल कितना है तुम्हारा? 5। CD का टोटल तुम्हारा कितना है? 5। तो आप डायरेक्टली एक्चुअली यहाँ पे बोल सकते हो, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज मिडिल, राइट? मैन्युफैक्चरिंग का आपका मिडिल वाला वैल्यू है, तो बीच में आपका 5 आना चाहिए। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और यहाँ पे 5 है। थोड़ा वेरीफाई करने के लिए कोई और भी चेक कर लो, फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन चेक कर डालो। ऑटोमेशन में कौन है? AG है, तो A और G मिला के 6 है, इसमें पहला 6 था, तो दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि 11 + 7 वैसे भी आपका 18 बनना ही था, हेंस A ऑप्शन। फिफ्थ प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स है। एवरी इशू हैड एग्जैक्टली वन पेपर बाय अ चाइनीज ऑथर। एवरी इशू, राइट? एग्जैक्टली वन पेपर बाय अ चाइनीज, चाइनीज कौन है? C। तो इसमें C आया और एग्जैक्टली बनाना चाहिए, इसमें E आया, इसमें E आया और इसमें आपका C आया, ये तो सही स्टेटमेंट है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हम फॉल्स ढूंढ रहे हैं। एवरी इशू हैड एटलीस्ट वन पेपर बाय ऑथर्स फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया। एटलीस्ट वन पेपर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया, ऑटोमेशन कौन है? AG है, एटलीस्ट वन तो आना ही चाहिए, ठीक है। AG में से एटलीस्ट कोई एक तो दिखे ही दिखे, इसमें A है, इसमें A है, इसमें A है और इसमें आपका G है। सो एवरी इशू हैड एटलीस्ट वन पेपर फ्रॉम ऑथर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया, सो दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली फाइन, इसलिए अगेन ये एलिमिनेट हो जाएगा। एवरी इशू हैड एग्जैक्टली टू पेपर्स बाय ऑथर्स फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया, अब ये बहुत प्रिसाइज स्टेटमेंट है, चेक करते हैं। एवरी इशू हैड एग्जैक्टली टू पेपर्स बाय ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एरिया, तो लॉजिस्टिक्स वाले कौन है हमारे पास? FEBH, एग्जैक्टली टू बन रहा है, FEBH, FEBH। तो FEBH में से एक तो यहाँ पे H है, FEB तो यहाँ पे है ही नहीं, FEB है ही नहीं, सो ये तो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। एवरी इशू हैड एग्जैक्टली टू पेपर्स बोला था, सो ये आपका इनकरेक्ट है एंड हेंस दिस विल बिकम राइट। लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं। एवरी इशू हैड एग्जैक्टली टू पेपर्स बाय इंडियन ऑथर्स। नाउ इंडियन ऑथर्स कौन थे? FABG, तो हमेशा इन चारों का मिला के मैक्सिमम दो नाम आना चाहिए, राइट? FABG, तो FABG, AG आया दो, FABG AB आ गया, FABG AG आ गया और FABG ये आया, इसलिए एग्जैक्टली सही था। एवरी इशू हैड एग्जैक्टली टू पेपर्स बाय इंडियन ऑथर्स, hence this was eliminated and the right answer is option C. Right, so I hope you have understood this set. This was a wonderful set, right? If you have any doubts you can just put that in the comments. Thank you.